کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جسمانی ہیں یا ہم روحانی ہیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سنبل نورین آج ایک خاص پروگرام کے ساتھ آپ سے شیئرنگ کر رہی ہوں چند ایسی باتوں کی جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، ہونا چاہیے۔ بہرحال خداوند کے روح نے مجھے جنبش بخشی اور مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے، اور میں حاضر ہوں اس پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے ریٹرن ٹکٹس۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے آزادی بخشی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کا لہو ہماری نجات کا سبب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا سب مسیحی واقعی گناہ سے آزاد ہیں کیونکہ وہ مسیحی ہیں؟ کیا ہم اپنی روحوں کو بچانے کے لیے یا ان کی جو بخشش ہوئی ہے اسے قائم رکھنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کچھ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب ہم اناجیل کی طرف غور کرتے ہیں تو کلام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم پر فضل ہوا ہے، ہم خداوند کی مرضی سے اس کے لہو کے وسیلے سے گناہوں سے آزادی پا چکے ہیں۔ تو کیا اتنا کافی ہے؟ اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم جو بھی کریں وہ معافی کی زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بہت سارے سوال ہیں۔ انہی چند سوالوں میں سے کچھ سوال لے کر ہم اس پروگرام میں بات کیا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں جسم اور روح کے بارے میں کیا مرقوم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جسمانی ہیں یا ہم روحانی ہیں؟ پھر لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ پھر لکھا ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ پھر بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ پھر شرط بھی ہے، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ یعنی یسوع مسیح کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی
ए बाप कहकर पुकारते हैं। अजीज़ों, बहुत सारी आयत मैंने एक साथ पढ़ दी हैं, लेकिन हर आयत में आप एक उम्मीद देखते हैं, खुदा की मोहब्बत देखते हैं। आप देखते हैं कि हमारे लिए कुछ अहकाम भी हैं, कुछ शराइत भी हैं जिन पर पूरा उतरना हमारे लिए लाजमी है, वरना हम गुलामी में घिर जाएंगे। फिर लिखा है 16वीं आयत में, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। रूह पाक हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के, फिर शर्त है, उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल को भी पा सकें। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या हम जो ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सिर्फ जिस्म की फ़िक्र करके गुजार रहे हैं या अपनी रूह की फ़िक्र में भी कभी कभी मगन होते हैं, उसकी भी फ़िक्र करते हैं। रूह और जिस्म दो चीज़ें हैं जो मिलकर हमें ज़िंदगी देते हैं। अगर जिस्म ना हो तो हम नज़र नहीं आएंगे, और अगर रूह ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। रूह और जिस्म का जो इम्तिजाज है ये सिर्फ दुनिया के लिए है, यानी जब तक हम जिस्म के वतन में हैं, हम दुनिया में जिस्म के ताबे ना हो जाएं। हम जितने काम करते हैं हम अपने जिस्म की खातिर करते हैं, क्या हम रूह की खातिर कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जिस्म ज़मीन में रह जाएगा, ये मिट्टी ही से बना है और मिट्टी ही में जाना है। फिर इसकी सहूलियात, फिर इसकी ख्वाहिशात जो जिस्मानी है, हमने पहली आयत में देखा कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी ज़रूरतों, जिस्मानी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी ख्वाहिशात का ख्याल करता है। हमें ये गौर करना है कि हम इस प्रोग्राम को देखते हुए इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि ये रिटर्न टिकट्स हम सब के पास है। हम सब को रिटर्न टिकट्स मिले हैं। हम आते हैं और फिर हम वापस जाते हैं। ये वापस जाना लाज़िम व मलज़ूम है। बेशक मसीहियों के लिए ये वापस जाना ऐसा ही है कि जैसे वो सोते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि हम मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पर लाजिम है कि हम अपनी रूह को बिगाड़ ना लें, हम अपनी रूह को आलूदा ना कर लें जिस्म की खातिर। कलाम में लिखा है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, और उसमें सबसे पहला है हरामकारी। हरामकारी क्या है? मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी तवज्जो मुख्तलिफ बातों की तरफ दिलवाऊंगी, लेकिन फिर मैं वापस आती हूँ कि आज हम सीखेंगे कि रूह क्या है। रूह के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? हम अपने जिस्म की ख्वाहिशात की तरफ क्यों बार बार लौट आते हैं? रूह के बारे में हम तभी सोच सकते हैं जब हमारा ताल्लुक रूहानी तौर पर खुदा से हो जाए, जब रूहानी तौर पर हम खुदा को कबूल कर लें। पहला सवाल जो जहन में आता है वो है कि जिस्म के साथ रूह का क्या ताल्लुक है। वो मैंने अभी जिक्र किया और आप सब जानते हैं कि जब रूह जिस्म का साथ छोड़ देती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए जिस्म और रूह दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। हमारा जिस्म नहीं, रूह ज़ख्मी हो तो मुश्किल होती है, क्योंकि एक आम ज़ुबान में भी कहा जाता है कि जी जो जिस्म पर जो ज़ख्म लगे हैं वो तो मुंदमिल हो जाते हैं दवाइयों से, वो तो साफ़ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वो चोटें ठीक हो जाएंगी। लेकिन रूह पर जो ज़ख्म लगते हैं वो बड़े कारी होते हैं और बड़ी देर तक उनका असर रहता है। तो हम रूहों को ज़ख्मी तो नहीं कर रहे, चाहे वो अपनी हो चाहे वो दूसरों की हो।
कहीं हम ये गुनाह तो नहीं कर रहे। फिर कलाम मुक़द्दस में हमारी रूह के लिए क्या फरमाया जाता है, रूह को कैसे बचाया जा सकता है, रूह की सेहतमंद होने में और उसके कमज़ोर होने में हम अपना क्या किरदार अदा करते हैं। हर इंसान एक रूह का मालिक है। हर इंसान के पास जो जी रूह है उसे रूह मिली है। जैसे कि हम जानवरों में देखते हैं तो उनमें सिर्फ जान पाई जाती है, रूह नहीं है, बल्कि एक तहकीक के मुताबिक तसलीस हम में मौजूद है। रूह है, जिस्म है, फिर पाक रूह है। और कुछ तज्जिया निगारों ने तो ये भी कहा है कि सोल है, स्पिरिट है और फिर होली स्पिरिट है। तो ये 3 रूहों का इम्तिजाज है। कई रिसर्च जो करते हैं और कलाम मुक़द्दस से भी जिन्होंने सीखा है, उनका कहना ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसे एक मददगार, एक फरिश्ते की सूरत में भी मिलता है, जो उसका गार्डियन एंजल होता है, जो उसके साथ साथ चल रहा होता है और हमेशा वो उसे बचाता रहता है। आप क्या समझते हैं, अगर गार्डियन एंजल हमारे साथ साथ चलता है तो फिर शैतान कैसे गलबा पा जाता है? शैतान कहाँ से आ जाता है? वो हमारी सोचों को कैसे काबू कर लेता है? क्योंकि वो भी उतना ही काम कर रहा है दुनिया में जितना कि खुदा कर रहा है। और आप जानते हैं कि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है। जैसे कि खुदा की सिफात हैं, वैसी ही सिफात खुदा ने हम में डाली है। और आज़ाद मर्जी की वजह से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम जो हमारा रूह कुद्दस से ताल्लुक़ है उसको उस्तवार कर लें, चाहे तो हम फिर शैतान की तरफ मुड़ जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारी आज़ाद मर्ज़ी पर मुनहसर है। फिर हम जिस्मानी ख्वाहिशात के मुताबिक क्यों चलते रहते हैं और इसकी वजह क्या होती है? रूहानी ख्वाहिशात की परवाह क्यों नहीं करते? रूहानी ख्वाहिशात हैं क्या? रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह को कैसे पाक और साफ़ रखा जा सकता है? क्या हमारी रूह हमारे जिस्मानी बर्ताव से खुश भी है? पता नहीं, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं ना कि जो हम कर रहे हैं हमारी रूह उससे खुश भी होती है या नहीं होती। बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी थे। इसी सोचा कि इस प्रोग्राम को ज़रूर करना चाहिए, जिसका नाम हमने रखा रिटर्न टिकट्स, कैसे हम अपनी रूह को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा मुकाशवा की किताब में हम बड़े वाज़ेह तौर पे सुनते हैं कि हम जब रोज़े महशर होगा तो हमारे जिस्म, जो हमें जिस्म मिलेंगे, उसमें हम एक नया जिस्म पाएंगे। बेशक शक्ल सूरत हमारी यही होगी क्योंकि खुदा ने हमें इसी शक्ल सूरत में पैदा किया है, लेकिन वो जवान जिस्म होगा। जवानी खुदा के नज़दीक वो उम्र है जिसे उसकी बहुत ज़रूरत है। बार बार कलाम में हम पढ़ते हैं कि नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं वो प्यार करने के लिए हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, सब है, लेकिन खुदा का जो काम किया जा सकता है वो जवानी में किया जा सकता है, क्योंकि जवानी में आप भरपूर ताकत में होते हैं और ये ताकत जो है वो बहुत से नशे पैदा करती है। ताकत एक नशा है, फिर इख्तियार एक नशा है, फिर आपका हुस्न, आपकी जवानी एक नशा बन जाती है। इन सब को पार करके जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो फिर खुदा के रूह के मुताबिक काम करते हैं और सुरखरू भी होते हैं। हम इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करेंगे और इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके मुताबिक अगर आप कोई सवाल करना चाहें या फिर इसके बारे में कोई आइडिया देना चाहें, अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर BTL के तवस्सुत से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी कॉल को शामिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ा टाइम आपका ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम में हम अपनी आँखों को बंद करके, जैसा खुदावंद ने फरमाया है,
زور زور سے نہیں، چلا چلا کر نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے خاموشی میں اپنی کوٹھڑی میں جا کر جیسے دعا کی جاتی ہے، اس طرح سے ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے اور چند لمحات خاموشی میں خداوند کو دیں گے۔ اے خداوند، ان تمام روحوں کے لیے جو اس وقت یکجا ہیں، جیسا کہ تو نے فرمایا کہ جہاں تیرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے تو ان کے درمیان موجود ہوگا۔ بے شک اے پیر خداوند، ہمارا ایمان اسی بات پر ٹکا ہے کہ تو یہاں موجود ہے۔ اے خداوند، ہم صرف اور صرف روحانی آنکھوں سے ہی تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک ہماری روحوں کا تعلق تجھ سے نہ ہو جائے، ہمارا رشتہ استوار نہیں ہو پائے گا۔ ہم صرف منہ سے خدا خدا کہنے والے نہ ہوں اے پیارے خداوند، ہم روحانی طور پر تجھ سے جڑ جائیں۔ ہمارا کام صرف مانگنا نہ ہو، بلکہ ہم جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے بھی ہوں۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم خطا کا پتلا ہیں اور بہت سی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں معاف فرمانا اور توفیق بخشنا کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کر سکیں۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو تیرے سامنے رکھتی ہوں پیارے خداوند، ان کے دلوں میں اپنے کلام کا بیج بو، تاکہ اس جسم کے وطن میں رہتے ہوئے اس سفر کو جو دنیا میں ہم کرنے آئے ہیں اچھے طریقے سے کر سکیں، تاکہ جب اپنی منزل کی طرف جائیں تو پوری خوشی اور اطمینان سے جا سکیں۔ جو کچھ مانگنا بھول گئے ہوں عطا کر، یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.